You know who made it. Hi guys, I'm Asim I'm Siddharth. and welcome to Crick Safari. And Siddharth, how are you feeling today? Excited? Our very first episode of many to come, where we can share with you our thoughts on the sport that we love the most. Okay guys, so today obviously upcoming Champions Trophy आने वाली है सिद्धार्थ Yes. and we all are excited and but I wanted to tell my viewers कि ये स्टार्ट क्यों हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का आइडिया कहाँ से आया हम लोगों ने ये चैंपियंस ट्रॉफी क्यों स्टार्ट करा एंड आई थिंक बहुत से व्यूअर्स को नहीं मालूम होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत की वजह क्या थी एंड आई आस्क यू आप अगर आप बैकग्राउंड दे सके चैंपियंस ट्रॉफी का See, Champions Trophy का I think the main purpose was when the ICC decided, कि 7-8 जनों में क्रिकेट 100 साल से खेल ली, हाँ. ठीक है. बट गेम को अगर आगे ले जाना है, हाँ. so they have to take it to, the smaller nations, nations like in Europe and Africa and all. And how do they do that? And not just कि उनके बीच में एक टूर्नामेंट करवा दिया, Africa playing, Namibia playing, Tanzania. Get them into the big league, Right. And that's one of the reasons. World Cup में तो obviously होता ही था, but 4 साल was too longer time for a small country to wait to be given a chance. Then came the Champions Trophy. And I think one of the best decisions that ICC did Right. was because it gave these small countries a platform to come. And that's how Champions Trophy started, where they started giving an opportunity to the small countries also to come and play initially, which we'll get to later, in a knockout format where they had a chance. So just to tell you, yes, that it was introduced to promote cricket in the non-playing test nation. I think 1998 में hats off to the guy Jagmohan Dalmia. Yes, very much. Very much. I think he has contributed a lot to the cricket. अभी Definitely. तक हम लोगों का उसका impact दिखता है. And just to tell you guys कि 1998 में the world cricket was also undergoing a transition stage, Siddharth. No, The definitely. Akrams and the Waqar Younis and McGrath and Vaughan and Muralidhar and then they were the young budding cricketers under 19 से हमारे लोग खेल रहे थे और जहीर खान, युवराज सिंह, And मोहम्मद actually, कैफ. that era was also a very transition time for cricket because we were coming off that match fixing, scenario, scandals and all. बहुत negativity थी 19. I still remember. It was very convoluted. That late 90s हाँ. was a very convoluted era. So yeah, this was I would say a breath of fresh air that came in, the Champions Trophy. The purpose of Champions Trophy was a noble cause. जितने भी funds आपके ट्रॉफीज के टूर्नामेंट से आएंगे वो नॉन टेस्ट कंट्रीज को प्रमोट करने के लिए क्रिकेट Yes. वहाँ पे यूज Yes. होंगे. Exactly. एंड जस्ट टू टेल यू अभी हम लोग 2025 में सिद्धार्थ. So I think from 1998 to 2025 we had 8 editions so far. और 1998 में जो पहला चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट था वो बांग्लादेश में होस्ट किया गया था. Yes. कुछ याद है 1998 बांग्लादेश? हाँ, 1998 पहले तो it was not called the Champions Trophy back then. It was called the ICC Knockout Tournament. It Right. was the ICC Knockout Tournament, And मेरे को 1998 का टूर्नामेंट इसलिए हमेशा से याद रहेगा मेरे को और सारे साउथ अफ्रीकन्स को भी बिकॉज दैट इज द ओनली आईसीसी ट्रॉफी एट द सीनियर लेवल आई थिंक And the दैट ICC दे हैव वन. Yes. I don't know. I think they won the under 19 World Cup maybe recently. I might be wrong there. But at the senior level, 1998 was the last time that they won anything. I mean, 1998, 27 साल हो गए हैं. उन्होंने कुछ नहीं जीता. And बहुत ही रिमार्केबल रहता है कि ऐसी टीम, साउथ अफ्रीका जैसी टीम, to not win a single. But fingers crossed. टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है इस साल. South Africa, So I am Australia. going all the way South Africa. Fingers crossed. So I think Siddharth 1998 was as आपने कहा कि ये टूर्नामेंट का जो कंसेप्ट था नॉकआउट था. All the teams, there were 8 teams participating in it. एंड सब लोग एक दूसरे के साथ इट वाज आई थिंक 15-16 गेम होने थे विद इन अ स्पैन ऑफ 15-16 डेज. सो बांग्लादेश में भी इट वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिकेट. ऑब्वियसली Yes. वो लोग अंडर 19 और वो लोग खेल रहे थे बट आई थिंक दिस टूर्नामेंट हेल्ड
टू, जैसे होता नहीं है कंट्री में इंटरेस्ट जगाना क्रिकेट में, सो आई थिंक बांग्लादेश में वो भी हुआ. द फाइनल्स वाज जस्ट टू टेल यू, द फाइनल 1998 का हुआ था साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज. Yes. Okay. South Africa obviously won, you know. But again, I would say, you know, what a tournament it was, you know, on a knockout format. I mean, एक मैच हारे and you are out. I mean, There is no second chance. I think वो एक बहुत बोल्ड था. उसी के बाद प्रॉब्ली हम लोग सब चिकन आउट कर गए, वापस से ग्रुप स्टेज लिया है, जो प्रॉब्ली अभी हम थोड़ा आगे बताएंगे आपको. So 1998 मैन ऑफ द मैच was Jacques Kallis. I think आपका क्या है? I think सिद्धार्थ मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑलराउंडर एवर. गोट आई विल कॉल जैक See, कालिस. in my lifetime, any day. दो कहते हैं गैरी सोबर्स भी बहुत अच्छे रहे थे, बट क्यों मैं कैलिस और सचिन को हमेशा आगे मानता हूँ, बिकॉज दे प्लेड 2 फॉर्मेट्स एंड दे प्लेड इन 10 डिफरेंट टेस्ट नेशंस. आई मीन, इतने डिफरेंट ग्राउंड्स में खेलना, इतने डिफरेंट कंडीशंस में परफॉर्म करना, एंड जैक कालिस को मतलब टू बी अ बॉलर ऑफ दैट क्वालिटी. आई मीन, ही वाज नॉट जस्ट रोलिंग हिज आर्म ओवर, ही वाज अ स्ट्राइक बॉलर. आई थिंक एक तो होता है कि ऑब्वियसली ही वाज अ टेक्निकल प्लेयर, उसका टेक्निक बहुत अच्छा था, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट खेले, वनडे क्रिकेट खेले. बट आई थिंक वही सिद्धार्थ जो हम बात करते हैं कि यू हैव टू कंट्रीब्यूट एवरी टाइम यू आर स्टेपिंग ऑन टू द फील्ड. जैक कालिस, सचिन तेंदुलकर, इन लोगों को देख के लगता था कि आज ये लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे. अगर बैटिंग में फ्लॉप है तो बॉलिंग में करेंगे, बॉलिंग में फ्लॉप है तो फील्डिंग में करेंगे, फील्डिंग में फ्लॉप है तो टीम को एकजुट करने में, कैप्टेंसी में करेंगे. आप देखते थे. तो आई थिंक 1998 का वन ऑफ द मेन रीजंस वाज कि आपको ऑलराउंड परफॉर्मेंस मिली थी जैक कालिस से. यस, ही वाज द ऑलराउंडर ऑफ योर टीम. एंड आई थिंक हांसी क्रोनिया के लीडरशिप, हांसी बाद में आप उसको कुछ भी कहिए सिद्धार्थ, बट मैंने मैचेस देखे हैं. आई थिंक आपने भी 90s में खूब मैचेस देखे होंगे. यस, बिल्कुल. आई मीन, हांसी क्रोनिया की कैप्टेंसी में इंडिया लॉस्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आई थिंक 93 के बाद 2000 में आके हांसी क्रोनिया ही तो हम इंडिया में हरा के गया था वो, विद हिज फास्ट बॉलिंग. तो एज अ कैप्टन डेफिनेटली. ओके, टू कंटिन्यू, फिर आता है 2 साल बाद 2000. The next Champions Trophy was held in Africa, Kenya. Yes. Kenya was the country, and I think to promote cricket, I think हम लोगों ने देखा कि फ्यूचर में वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल स्टेज तक कीनिया पहुंची. 2003 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचे थे वो लोग. तो डेफिनेटली उनके गेम का डेवलपमेंट हुआ. 2000 ईयर एरा ऑफ मिलेनियम, युवराज सिंह, जहीर खान, मेरे लिए क्या था वो टीम, कैसी थी? मेरे लिए 2000 का चैंपियंस ट्रॉफी, ऑनेस्टली रिजल्ट्स ठीक है जो भी रहे थे, पर मेरे लिए इमर्जेंस ऑफ द 2 लेफ्ट आर्मर्स, एक लेफ्ट आर्म बैट्समैन, आपका लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और लेफ्ट आर्म बॉलर जहीर खान एंड युवराज सिंह. मैं अभी भी युवराज सिंह का जो डेब्यू इनिंग्स था, एक पहले मैच में उनको बैटिंग नहीं आई थी, उनका जो डेब्यू इनिंग्स था, सेकंड मैच में उनको मिला एंड ही हिट एंड 80 ऑड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. बट आई थिंक जब हम लोगों ने वो साइड देखी सिद्धार्थ, उस साइड में आई वाज शॉक्ड टू सी कि विनोद कांबली भी खेल रहे थे. अभी आप सिचुएशन देखिए क्या है, बट ही वाज स्टिल अ पार्ट ऑफ द टीम. वेरी मच सो. आई थिंक 96 वर्ल्ड कप के बाद उनको आई थिंक ड्रॉप कर दिया गया था. हाँ जी. इस टाइम के दौरान उनकी कमबैक हुई थी टीम में, यू नो. So the team was a mix of experience and youth, जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि, और अभी हम लोग आगे भी आपको बताएंगे कि जो टीम ने टूर्नामेंट जीती, चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप हो, ओडीआई हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, यू विल ऑलवेज सी जो साइड में एक्सपीरियंस लोग भी थे, यंग लोग भी थे. नहीं, और जैसा असीम तुमने बोला, ऑलवेज एक ऑलराउंडर काइंड ऑफ अ प्लेयर था. जैसे इंडिया फाइनल में पहुंचा था, युवराज सिंह ने बॉलिंग भी की थी 10 ओवर फाइनल में, बॉलिंग करी है, रन भी बनाए थे उसने, ठीक है. उधर से क्रिस कैन्स आया गया था अनफॉर्चुनेटली. फाइनल इंडिया न्यूजीलैंड हारने वाली थी वो मैच. मैं उस समय इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय तो वो हम स्कोर फोन पे भी इंटरनेट नहीं होता था इतना, बिकॉज वो पुराने वाले वो डेस्कटॉप में हम फीचर फोन था. तो क्या मुझे अच्छी तरह याद है, इंटरनेट कियोस्क लगे रहते थे फ्री वाले मेट्रो स्टेशन में. तो मुझे याद है मैं भाग के जाके वहां पे स्कोर चेक करता था, है ना. मैंने जब गांगुली ने 100 मारा, हमने 260 ऑड बनाया. ओपनिंग पार्टनरशिप वाज 141, जस्ट टू टेल यू गाइस, एंड स्टिल वी लॉस्ट द मैच. मैं एकदम कॉन्फिडेंट था कि ये मैच तो अब हम जीतेंगे, आईसीसी टूर्नामेंट आ गया है. पर फिर मैं जब हर आधे घंटे के बाद स्कोर चेक करता था, मैं देखता था यार कि आउट नहीं हो रहा कैन्स. और फाइनली जब लास्ट में जाके चेक किया,
100 मार के फाइनल Wonderful. I जिताया think one of the best inning of Chris Gaines ever and the world cricket. आई थिंक एक ये फेरी टेल होता है जब आप कोई टूर्नामेंट जीतो और फाइनल में आप 100 मार 100 मारो. No, I think 25 साल बाद भी हम लोग उसको याद कर रहे हैं. हर एक इंडियन जो उस समय था वो क्रिस कैन्स को नहीं भूला. भले ही क्रिस कैन्स का हांसी क्रोनिया वाला हाल हो गया आगे जाके, Right. बट एज अ क्रिकेटर उसको उस परफॉर्मेंस के लिए तो आप उसको जिंदगी भर याद रखेंगे क्रिस कैन्स को. Okay. Next अगला चैंपियंस ट्रॉफी इन श्रीलंका 2002. सिद्धार्थ इसके बारे में बैकग्राउंड दीजिए. आई थिंक बहुत वेन्यू चेंज हुए, क्या हुआ? हाँ, एक्चुअली 2002 वाला आई थिंक ये इंडिया में होने वाला था, बट उस समय टैक्स एग्जेम्पशन आईसीसी को चाहिए था इस टूर्नामेंट के लिए, बिकॉज एज वी सेड It was a noble cause. नोबल कॉज के लिए कर रहे थे. नॉन टेस्ट प्लेइंग बट कंट्रीज को. इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर हम सब जानते हैं कैसा है, तो टैक्सेशन की वजह से इस टूर्नामेंट को शिफ्ट करना पड़ा था. श्रीलंका में हुआ था. एंड आई थिंक सिद्धार्थ 1996 में श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता. यस. और आई थिंक जो साइड श्रीलंका ने उस दौरे में मनाई 1996 में, जयसूर्यास, डिसिल्वास, मुरलीधरन, चमिंडावास, दे वर द फेवरेट्स एट होम डेफिनेटली. आई मीन जयसूर्या आपका 96 से जो उसका सितारा चमका था वो और चमकता ही जा रहा था. वो रन्स पे रन्स मारे जा रहे थे और एट होम तो वो शेर थे. जयसूर्या वाज कैप्टन. फाइनल में पहुंचे इंडिया एंड श्रीलंका. और 2 फाइनल हुए. वही मैं कहना चाहता हूँ. फिर हो गई बारिश. पहली बार बारिश हुई. श्रीलंका किस्मत का धनी था क्योंकि 240 ऑड बनाया. इंडिया वाज बैटिंग वेल. बारिश आ गई. नेक्स्ट मैच में श्रीलंका ने आई थिंक कितने 220 या कुछ बनाया. हाँ, 222-23 के अराउंड बनाया. और इंडिया वाज 30 या 40 फॉर 1 ऑन सॉन्ग टू विन. फिर बारिश आ गई. तो So I think they were the joint winners they were the only joint winners of an ICC trophy ever so far. so far. So far they were the only joint trophy. मुझे I अभी think तक जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का ओडीआई वर्ल्ड कप जो टाई हो रहा वो भी है सिद्धार्थ जॉइंट विनर्स. यार वो तो मैं केन विलियमसन को मैं अभी तक याद करता हूँ. आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट ने देखा था कि वो मैच सिर्फ बाउंड्रीज के आधार पे देना एक टीम को. बाउंड्री काउंट बैक पे मतलब मेरे को तो उसको भी शेयर कर देना आज चाहिए तक नहीं मालूम एग्जैक्टली काउंट बैक होता क्या है. बाउंड्री काउंट बैक क्या होता है. बस सोचो ऐसी बट टेक्निकलिटी. इसमें जो फैक्ट्स थे वो थे कि आईसीसी ने हर क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले सिद्धार्थ रूल्स, हाँ, कोई भी टूर्नामेंट में रूल्स होते हैं. वो मैं बिल्कुल और मानता वो हूं. सिचुएशन किसी ने इमेजिन नहीं की थी कि टाई हो फिर सुपर ओवर में टाई हो. सो आई थिंक वो जो उन लोगों ने जो भी रूल्स दिए होंगे उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ये रूल. देखो वो तो रूल्स थे. वो तो हम एज अ यू नो कमेंटेटर्स एज अ वो सॉर्ट ऑफ फैंस वो बोल सकते हैं कि यार. बट हाँ, फुल क्रेडिट टू न्यूजीलैंड तो देना ही पड़ेगा. बट कमिंग बैक टू दिस ट्रॉफी, मेरी इस ट्रॉफी की 2002 चैंपियंस ट्रॉफी की डिस्टिंक्ट मेमोरी है कि जब ट्रॉफी दिया गया एक तरफ जयसूर्या खिलखिला के हंस रहे थे कि हम जीत गए हैं, और उस तरफ सौरव गांगुली ऑलमोस्ट सेमी डिजेक्टेड बिकॉज ही न्यू दैट ही कुड हैव लिफ्टेड इट ऑन हिज ओन. उसको शेयर करने की जरूरत नहीं थी वो. But I think 2002 marked the launch of Sehwag. Virender Sehwag was in the tournament. I think 2001 में उन्होंने साउथ अफ्रीका में 100 मारा था और ये उनका पहला आईसीसी टूर्नामेंट था और इन्होंने इट वाज अगेंस्ट द मार्क ऑफ द न्यू एरा. हाँ, ओ बिल्कुल. आई मीन ये मतलब सहवाग जैसा प्लेयर सिद्धार्थ आते ही बॉलिंग उड़ाना. देखो वनडे में पहले 15 ओवर्स में रन बनाने का थोड़ा बहुत कल्चर सचिन ने शुरू कर दिया था. सचिन ने शुरू कर दिया था. जयसूर्या, कालू वितारना, सचिन, एवरीवन. जयसूर्या एंड कालू वितारना वो अलग लेवल पे ही ले गए सीधा. राइट. मैं कालू विथरना का नाम लूंगा बिकॉज सबसे पहले उसने मारना शुरू किया था. उसने जो ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप के पहले एट होम मारा था, ऑस्ट्रेलिया वो शॉक्ड कि ये हो क्या रहा है. ग्लेन मैकग्राथ वो शॉक्ड कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ. पर सहवाग ने इंडिया के लिए ही टुक ऑन दैट रोल एंड आज तक वो रेवोल्यूशनाइज करके रखा हुआ है. नहीं, और ओपनिंग में जाना हम लोगों ने भी जब बड़े हो रहे थे क्रिकेट खेले थे सिद्धार्थ, हमें पहले हमेशा बोला जाता था पहले 2-3 ओवर बॉल को देखो, बिल्कुल पिच को महसूस करो, एनवायरनमेंट को महसूस करो, लीव द बॉल. और सहवाग का पहली बॉल में ही 4 रन. आई थिंक ये माइंडसेट अगेन जो हम लोग बात करते हैं माइंडसेट की बात है. आई थिंक 2020 क्रिकेट ही इन्वेंटेड अ लॉट. ओ बिल्कुल. आपको तो कभी कभार ना मौका मिले तो सौरव गांगुली की टिप्पणियां सुननी चाहिए सहवाग के बारे में कि वो नेटवेस्ट फाइनल के बारे में वो क्या क्या प्लान क्या करके जाते थे और कैप्टन को बोल के जाता था कि हाँ ठीक है मैं आराम से खेलूंगा. अगली बॉल पे इधर की बॉल आती थी छक्का. तो सौरव गांगुली ने भी छोड़ ही दिया था. कमिंग बैक टू चैंपियंस ट्रॉफी 2004
West Indies versus England, the memorable I would match. say that was after the 2000 final. What a final it was. Ian Bradshaw, West Indies were almost they कहाँ? needed 60 to 70 runs और 2 wicket. वन साइडेड फाइनल हो रहा था. इंग्लैंड एकदम पूरा हावी था उनके ऊपर. वेस्ट इंडीज को 8 डाउन कर दिया था. 70-80 रन चाहिए. उनका बॉलर और कीपर आ गया. मतलब इंग्लैंड हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कॉकिंग द शैंपेन पॉसिबली इन द ड्रेसिंग रूम्स कि लेट्स पुट द शैंपेन ऑन आइस एंड एवरीथिंग. What a performance by Ian Bradshaw, huh? Calm, cool. और इंग्लैंड में फाइनल में इंग्लैंड को हराना, आई थिंक वो जैसी वो मैच, आई थिंक मेरा भी 10th का बोर्ड था सिद्धार्थ, एंड मुझे भी लग रहा था कि वेस्ट इंडीज ने मैच हार गई है. बिल्कुल मेरा भी ही मानना था कि हाँ मैं हैड गिवन अप कि अब तो इंग्लैंड जीत गया. पर मुझे याद है वो मैच में पूरी तरह देख नहीं रहा था. चल रहा था टीवी पे पर हम घर पे कुछ ना कुछ कर रहे थे. राइट. थोड़ी देर में आके देखो, मैं बोला अभी भी आउट नहीं हुआ. थोड़ी देर में फैला के देखूं, अभी भी आउट नहीं हुआ. रन 50 से कम हो गए, रन 40 से कम हो गए. फिर मैं बैठ गया. मैंने बोला यार ये हो क्या रहा है. मेरा मानना है कि आईसीसी टूर्नामेंट में ऐसा टर्न अराउंड उसके बाद मैंने तो देखा नहीं है. नहीं कि हारा हुआ मैच फाइनल में टर्न अराउंड मैंने तो नहीं देखा. टर्न अराउंड नहीं देखा. It was very fantastic performance. I think Ramnaree Sarwan was the player of the series, Siddharth. अच्छा ये मुझे And it was, उसने बहुत रन मारे, and I think again हम लोग बात कर रहे हैं कि why all rounder is important. I think अभी तक हमने जितने भी चैंपियंस ट्रॉफी को एनालाइज किया सिद्धार्थ, एक चीज निकल के आ रही है कि आपके पास एक ऑलराउंडर होना चाहिए. और ये आपको अभी तक दिखाता है. 2011 वर्ल्ड कप क्यों जीते? युवराज सिंह. आई थिंक अगर युवराज सिंह नहीं होते तो हम लोग वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते. तो एक अच्छा ऑलराउंडर का होना हमेशा टीम में जरूर है. आई थिंक कोई भी फॉर्मेट खेलें एक ऑलराउंडर को होना जरूरी है. बीच में एक फेज आ गया था कि आप स्पेशलिस्ट्स में चले गए थे, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज में चले गए थे. बट एक ऑलराउंडर आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है. आप कोई भी देख लो, चाहे इमरान खान देख लो 92 में, 83 में कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ. एक ऑलराउंडर जो एक भूमिका निकालते हैं इस टीम में, द इम्पोर्टेंस दे ऐड इज फिनोमिनल. 2006 नेक्स्ट वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया का एरा, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी 2006. ऑस्ट्रेलिया, ओ द ऑस्ट्रेलियन डोमिनेशन. वो पूरा ईरा ऑस्ट्रेलिया का था. इधर वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, इधर मैंने चैंपियंस ट्रॉफी इसलिए बोला उनका, आई थिंक था कि उन्होंने सारे मैच, सारे आईसीसी टूर्नामेंट जीते होंगे, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो. सिर्फ 2007 में 2020 वर्ल्ड कप उनसे रह गया था. इनफैक्ट 2020 वर्ल्ड कप तो अभी एट होम जब उन्होंने पाकिस्तान को आई थिंक फाइनल में हरा, नहीं दुबई में जीता था आई थिंक ना उन्होंने. सो 2006 Australia versus West Indies. Yes. And I think man of the player of the match again, Shane Watson. हाँ, वो शेन वॉटसन का भी अच्छा दौर चला था. कैसा, आप कैसे रैंक करेंगे? आपने सिद्धार्थ, कभी कभी क्रिकेट में हमने देखा है कि क्रिस गेल, शेन वॉटसन, ये प्लेयर्स को कभी मुझे नहीं लगता उतना क्रेडिट मिला. एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाला था कि ये एक बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर था. एंड वाइट बॉल फॉर्मेट में व्हाट एन एसेट टू हैव इन द टीम. बॉल भी कर सकता है एंड फील्डिंग में एजाइल भी था बहुत. बैटिंग तो करता ही था अच्छा. आईपीएल में कितना उसने अच्छा किया. आई थिंक वो आईपीएल आल्सो ही इज परफॉर्म्ड वेरी वेल. सो 2006 में शेन वॉटसन ने 57 रन मारे थे, 2 विकेट्स ली थी. और प्लेयर ऑफ द सीरीज, आप गेस करिए प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे 2006 में? अनदर प्लेयर जिसका नाम अभी तक सब जगह है, वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. प्लेयर ऑफ द सीरीज व्हाट, शेन वॉटसन ही नहीं, प्लेयर ऑफ द सीरीज थे क्रिस गेल. क्रिस गेल, उसका भी दौर चला था भैया. क्या मारता था वो. क्रिस गेल ने भी आई थिंक क्रिकेट चेंज करी थोड़ी. यार आई हैव नेवर सीन अ बैट्समैन हिट द बॉल एज हार्ड एज हिम. मतलब आज तक T20 में 175 मारना अनहर्ड ऑफ. सो इट इज मोर ऑफ जय सूर्या को ही आप थोड़ा और हल्क जैसी फिग बॉडी अगर दे दो तो आई थिंक क्रिस गेल निकला. बिल्कुल. मुझे आज तक याद मुझे जय सूर्या के बाद ऐसा निडर खतरनाक प्लेयर क्रिस गेल ही लगा. ओ बिल्कुल. मुझे 2002-2003 में वेस्ट इंडीज इंडिया आई थी वनडे टूर के लिए. सबने तो यही बोला था इंडिया तो आराम से जीतेगी, गांगुली, तेंदुलकर सब हैं. मैच खत्म हो रहा है, क्रिस गेल आउट ही नहीं हो रहा है सीरीज में. एंड दे बीट अस इन दैट सीरीज. वी लॉस्ट दैट वनडे सीरीज एट होम एंड क्रिस गेल वाज द वन. मैं पहली बार देखा कि ये बंदा कौन है. उसके बाद तो सभी जान गए उसका नाम. राइट. अगेन 2009 चैंपियंस ट्रॉफी में आते हैं. अगेन फाइनल था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड.
न्यूजीलैंड सिद्धार्थ कैसे करके ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली वो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता, अगेन मैन ऑफ द मैच वाज शेन वॉटसन, बट सॉरी टू इंटरप्ट, बट 2006 फाइनल आल्सो एक यूनिक था कि इमेजिन टूर्नामेंट इंडिया में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, कोई भी एशियन टीम सेमीफाइनल में पहली बार नहीं पहुंची। आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम an ICC tournament did not have an Asian team in the semi-final. और इंडिया में हो रहा था, and India में imagine. Sorry, go back to 2009. No, I think it's a very valid point, क्योंकि हमेशा आप देखेंगे लास्ट फोर में चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका, हमने हमेशा एशियन टीम देखी है। बिल्कुल। और बट अगेन क्वेश्चन, वो चैंपियंस ट्रॉफी 2009 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, सिद्धार्थ न्यूजीलैंड एक बहुत छोटी कंट्री है, आपको क्यों लगता है बार बार वो सेमीफाइनल और फाइनलिस्ट होते हैं? आपकी क्या राय है इसमें? देखो, मुझे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज है ना, आई मीन ऑस्ट्रेलिया बड़ी कंट्री है बट पॉपुलेशन उसकी रिलेटिवली कम है। राइट। आई थिंक उनके यहाँ क्या होता है कि वो एक स्पोर्ट को ना पैशन और एंजॉयमेंट के लिए भी खेलते हैं। हमारे यहाँ जब एक बंदा स्पोर्ट में अच्छा हो जाता है, उस पर इतना प्रेशर आ जाता है, एक तो वो अपने आप पे प्रेशर डालता है, सेलिब्रिटी कमर्शियल प्रेशर आ जाता है, सेलिब्रिटी कल्चर। वहाँ पे क्या है कि आप अभी भी उनके प्लेयर रिटायर करने के बाद वो कोई बंगलों में नहीं बैठे हैं, वो कोई नौकरी कर रहा है, कोई ब्रॉडकास्टिंग की नौकरी कर रहा है। मैं देख रहा था स्टुअर्ट लॉ, एक्चुअली आई थिंक कुछ ही वाज सम मैनेजर इन सम कंपनी और समथिंग लाइक दैट। बट दर्शकों को बताना चाहेंगे हु वाज स्टुअर्ट लॉ? Oh, Stuart Law was a right-handed Australian batsman, not an opener but a top order batsman. So 2009 Champions Trophy again. Man of the match Shane Watson. Yes. Final. I mean, imagine two finals in a row in a span of 3 years. And player of the series was Ricky Ponting. So just to tell our viewers, सिद्धार्थ, हम लोग ये क्यों बता रहे हैं? हम लोग इसलिए बार बार अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि जो भी टीम फाइनल और लास्ट टूर्नामेंट्स में पहुंची है और जीती है, उसमें हमेशा एक एक्सपीरियंस और यूथ का कॉम्बिनेशन रहा है। उसमें हमेशा आपके पास ज्यादा ऑलराउंडर्स रहे हैं, उसमें ज्यादा हमेशा आपके पास स्पिनर्स रहे हैं। आई थिंक आजकल की क्रिकेट में तो हम शेन वॉर्न, मुरलीधरन, ऐसे स्पिनर्स तो दिखते ही नहीं है सिद्धार्थ। एक्चुअली अगर आप एक ऑनेस्टली वर्ल्ड क्रिकेट में आप देखें, स्पिनर्स तो मैं जानता ही नहीं हूँ कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर बचा है अब। ठीक है, फास्ट बॉलिंग में ठीक है, फिर भी ऑब्वियसली बुमराह इज देयर एंड बट आई वुड से बॉलिंग कबर्ड वर्ल्ड क्रिकेट में थोड़ा बेयर होता जा रहा है। वो स्टार्स नहीं रहे। पहले जब आप मैच होता था तो इधर मुरलीधरन बॉलिंग कर रहा है, उधर शेन वॉर्न है, उधर ग्लेन मैकग्राथ आ रहा है इधर से। आई मीन बॉलर्स ही बॉलर्स होते थे हर जगह से। बट अब यहाँ पे आई थिंक एक तो काफ़ी रिटायर कर गए हैं ऑफ लेट प्लेयर्स, but then again, you know, this is the past to the future. I think probably, you know, जब हम अपना 1000 एपिसोड आपके साथ करेंगे, क्या पता हम कुछ प्लेयर के नाम लेंगे जो हम उनको लेजेंड की कैटेगरी में डाल। सो आई थिंक नहीं, एक और बार 2009 2007 ये एरा था चेंज ऑफ इंडियन क्रिकेट का। 2007 में 2020 वर्ल्ड कप हुआ था और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का जब स्क्वाड हुआ था अनाउंस, 2009 का जो वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी हम लोगों ने खेला, आपको क्या लगता है हम लोग क्यों नहीं पहुंच पाए थे उस टाइम? इंडिया, हाँ, See, 2009 what was the धोनी era? था टीम में, युवराज था, जहीर खान था, सचिन था। आपको क्यों लगता है हम लोग क्यों नहीं पहुंच पाए? See, एक तो 2009 आपका एक तो साउथ अफ्रीका में भी हो रहा था, ठीक है। कंडीशंस देखो, 50 ओवर में इट बिकम डिफिकल्ट। आप T20 खेल लो कहीं पे भी चलता है, पर 50 ओवर इज आपका अगर स्किल सेट्स नहीं होंगे इन पे। मेरा ये होगा सिद्धार्थ, वो सीरीज में रिकी पॉन्टिंग वाज प्लेयर ऑफ द सीरीज 2009 में। अगेन वही हम लोग बार बार बात करते हैं, लास्ट में राम नरेश सरवन थे जो वेस्ट इंडीज ने जीता था 2002 में। अगेन आपका एक स्टार बैट्समैन होता है जो हमेशा रन मारता है। तो अगर हम लोग की मैसेजेस अभी तक देखें तो अपने दर्शकों और व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? हम बताना चाहेंगे कि आपकी टीम में ऑलराउंडर एक होना चाहिए, yes. आपकी टीम में एक बैट्समैन होना चाहिए जो रन मारे, और आपकी टीम में एक बॉलर होना चाहिए जो विकेट्स ले। आई थिंक 3 और 4 लोग भी अगर परफॉर्म करते हैं सिद्धार्थ, तो पूरी टीम आई थिंक फाइनल। आई मीन आप वही करो ना, जो पेरेटोज लॉ ऑफ एफिशिएंसी है, उसमें 20% ऑफ द टीम एट टाइम्स कैरीज द एंटायर टीम, यू नो, तो वही होता है। फिर आता है चैंपियंस ट्रॉफी 2013, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। पहली बार मैंने व्हाइट कोट देखा भैया, डॉक्टर ने नहीं पहना हुआ था, इंडियन टीम ने पहना हुआ था। वो मैच इंडिया हारने वाली थी सिद्धार्थ। तो यस, रवि बोपारा, यस, ही वाज क्रूजिंग इन,
आपको क्या लगता है, अश्विन का लास्ट ओवर या ईशांत शर्मा का उसका सेकंड पेनल्टी मेट ओवर जो ईशांत शर्मा ने करा था? मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे इतने स्पेसिफिक से याद नहीं, पर मुझे मालूम है बीच में बारिश आई थी। हाँ। अब मुझे लगता है वो हमें फेवर कर गई। रिवाइज टारगेट दिया गया, रिवाइज टारगेट दे दिया गया था, पिच को लाइवली हो गया था, एक मोमेंटम रुक गया मैच। एग्जैक्टली तो आप ये कहने जा रहे हैं कि जो इंग्लैंड कभी कभी, क्योंकि हम लोग भी खेलते हैं, जब मैच होता है कि आपकी पिटाई हो ही जा रही है, बैट्समैन आपको चौके छक्के हर बॉल पे मारे जा रहे हैं, कभी कभी एक होता है कि या तो विकेट लो, मोमेंटम को तोड़ो, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं। एंड ये मोमेंटम की बात 11 साल के बाद इस टूर्नामेंट के ऋषभ पंत ने इस साल फाइनल में आपको दिखाया T20 में, जब क्लासन और मिलर वो गोइंग फुल स्विंग, उसने एक इंजरी टाइम आउट लिया और पट्टी बंधवा रहा था, अगर आपने नोटिस किया। मुझे तो अफगानिस्तान का मैच याद है 2020 का, पर खैर चलिए 2020 की जब हम लोग बात करेंगे, वर्ल्ड कप की हम लोग करेंगे, तो 2013 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, मैन ऑफ द मैच वाज रविंद्र जडेजा, अगेन एन ऑलराउंडर। बिल्कुल, रविंद्र जडेजा with 33 runs and 2 wickets, and I think ये टूर्नामेंट तो शिखर धवन का था, प्लेयर ऑफ द सीरीज। वन एंड सॉ क्या 100 मार रहा था, ही वाज आई थिंक हिट 300 इन द टूर्नामेंट बैक टू बैक। तो आई थिंक अगेन हम लोग वही बात कर रहे हैं सिद्धार्थ की, बार बार ये टूर्नामेंट भी आपको एक ऑलराउंडर और एक ऑलराउंडर बैट्समैन। विराट कोहली की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में नहीं अच्छी थी, धोनी की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में नहीं अच्छी थी। बिल्कुल। फिर आता है चैंपियंस ट्रॉफी 2017, बुमराह की नो बॉल या फकर जमान का 100, आपको क्या? फकर जमान, I think I'll give them the credit where credit is due. Pakistan, you know, after that first match when India really thrashed them, right, and India were, I think, unbeaten. We were going into the unbeaten into the finals. And Pakistan, they had just lost to India. So again, two best teams went into the final. Oops, sorry. आप गेस कर सकते हैं मैन ऑफ द सीरीज कौन था उस टूर्नामेंट का? उस टूर्नामेंट का आई डोंट नो, आई लीव दैट टू यू। अभी तक जितनी भी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, फर्स्ट टाइम एक बॉलर, और आई थिंक वो बॉलर पाकिस्तानी आई थिंक वो बॉलर ने बहुत, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बट ये अगेन मैच हम लोग अनफॉर्चुनेटली हार गए थे। पर आपको मालूम है हसन अली इंडिया का दामाद है, हमने अपनी बेटी दी है उसको भैया। तो ये मैच हम लोग हार गए थे, देखिए ये नहीं होता, हम लोग ने अच्छा क्रिकेट खेला, एक मैच हम हार गए, बट अगेन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम पाकिस्तान। वो मैच पाकिस्तान में जो फकर जमन ने बैटिंग करी इनिशियली, और आई थिंक जो टारगेट भी पाकिस्तान ने बनाया था 338 रन। एक्चुअली इस मैच में पाकिस्तान ने बॉल 1 से डोमिनेट करना शुरू किया था, फाइनल में 338 and till date, unfortunately to say, it is the biggest margin of victory in an ICC tournament final in a 50 over format. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे व्यूअर्स के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में फर्स्ट टाइम वेस्ट इंडीज फेल टू क्वालिफाई। आई थिंक वेस्ट इंडीज हमेशा एक पावरफुल टीम रही है, स्पेशली 2020 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी। दी फर्स्ट टाइम थी कि वेस्ट इंडीज नहीं हुआ, एंड वही हम लोग बात करते हैं सिद्धार्थ, हर टीम में एक ट्रांजिशन का टाइम आता है, बट मेरे ख्याल से अभी तक वेस्ट इंडीज की जो टीम हमने 90s में देखी, विद कार्ल हूपर्स, विद जिमी एडम्स, विद ब्रायन लारास, विद वॉल्श, एम्ब्रोज, कमिंस, बिशप, यू नेम इट, वो अभी तक उनकी टीम नहीं बन पा रही। एक्चुअली बहुत लंबा अरसा, आई थिंक एक जनरेशन 30 साल का होता है, एक जनरेशन उनका बीत गया, वो टीम एक बना ही नहीं पा रहे। 2 टूर्नामेंट जीत रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, जैसे हमने वो ब्रैडशॉ 2004 का बात किया, T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीते, वो टूर्नामेंट जीत जाते हैं, बट वो एक फ्लैश इन द पैन होता है लिटरली। बट सिद्धार्थ, हमने देखा, हमने पूरी जर्नी डिस्कस करी 1998, और अब हमें 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है। अगर आप ये पूरी जर्नी देखें 25 साल की, जैसे आप कह रहे हैं कि ये जनरेशन का एक टाइम होता है, क्या आपको लगता है कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कम हो गया है? क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये क्रिकेट बैटर्स डोमिनेटेड गेम बनता जा रहा है? ओके, आपको क्या लगता है? सी ऑनेस्टली आई थिंक एक तो जब आपके फॉर्मेट्स इतने बढ़ गए हैं, पहले क्या होता था कि आप एक टेस्ट खेल रहे हो, 50 ओवर खेल रहे हो। नाउ T20 जो एक एग्रेशन लेके आया है आप में, तो T20 तो भैया बैटर्स के लिए ही बना है। अब वही कॉन्सेप्ट थोड़े आपके 50 ओवर में चेंज करेंगे सिद्धार्थ? देखो, सॉरी टू, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है मुझे जब देखते हुए कि आपके 35 ओवर्स के बाद एक
नई बॉल आ जाती है. सॉरी टू से, सचिन, कोहली, ऑल टाइम ग्रेट्स, वी कांट कंपेयर. गवास्कर अपनी जनरेशन के बेस्ट प्लेयर्स हैं, बट टू इमेजिन करिए कि सचिन तेंदुलकर ने वो पुरानी बॉल से रिवर्स स्विंगिंग बॉलर्स के अगेंस्ट वो 100 मारता था, अभी 35 ओवर्स के बाद आपको न्यू बॉल बन जाती है. तो क्या ये बेसबॉल की तरफ क्लब बनाना चाहते हैं कि दर्शक आए, छक्के चौके एंजॉय करें और फिर वापस जाएं? बॉलर्स का आपने देखा, जितनी भी हमारी चैंपियंस ट्रॉफी हुई, मैन ऑफ द सीरीज बॉलर ओनली वंस, हसन अली. सी, व्हाइट बॉल गेम तो बैट्समैन के लिए ही बना था. इट वॉज मेड फॉर पीपल टू कम एंड एंजॉय. पैक अ स्टेडियम विथ योर फैमिलीज एंड एंजॉय. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप 100 बॉलों में 10 विकेटें गिर के वो एंजॉयमेंट नहीं होता. वो 300 बॉलों में 15-16 छक्के पड़ रहे हैं. एंड यू नो, एक बट क्यों सिद्धार्थ, क्यों ये शुरू से? आई थिंक ये गेम का फॉर्मेट ही अलग है. इट इज नॉट मेंट टू बी एन इवन गेम. इट इज नॉट मेंट टू बी अ कॉन्टेस्ट बिटवीन अ बैट एंड अ बॉल. बट मुझे तो हमेशा लगता है सिद्धार्थ की जो आपके बैट्समैन हैं वो व्हाइट कॉलर लोग होते हैं और जो बॉलर होते हैं वो ब्लू कॉलर होते हैं. वो फैक्ट्री में आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट क्रेडिट हमेशा बॉलर से छीन लिया जाता है. ऑलराउंडर क्या कहता है, ऊपर वो पैंट दोनों अलग अलग रंग की पहनता है क्या? व्हाइट और ब्लू. ऑलराउंडर के पास व्हाइट और ब्लू दोनों होता है, और तभी चलता है. तभी वो क्रिकेट चलती है. तो जस्ट टू कम बैक ऑन द चैंपियंस ट्रॉफी, तो एक क्वेश्चन का आई थिंक आप आंसर ये देना चाह रहे हैं कि द फॉर्मेट बदल गया है 2020 आने से. बिल्कुल. और वर्कलोड मैनेजमेंट, आपको ये भी लगता है इससे प्लेयर्स पे हमेशा प्रेशर रहता है कि मारो जाके, बस छक्के चौके मारो? सी, आई थिंक कमर्शियलाइजेशन ऑफ गेम के बाद से प्लेयर्स पे इतना प्रेशर होता है कि प्लेयर्स खुद चाहते हैं कि हम अग्रेसिव रहें, रन बने. एंड कहीं ना कहीं आई थिंक यार, एडी सबको अच्छा लगता है यार छक्के चौके मारना, किसको नहीं अच्छा लगता है? आई मीन सब गावस्कर जैसा नहीं रह सकते ना. नहीं तो सिद्धार्थ, अगेन टू टेल, आप क्या ये देखते हैं कि 10 साल बाद ये बेसबॉल गेम जैसा देखा जा रहा है क्रिकेट को? नहीं, आई थिंक 10 साल बाद सी फॉर्मेट्स पे आप रहो. 50 ओवर फॉर्मेट मुझे लगता है कि 50 ओवर का मुझे नहीं लगता फॉर्मेट रहेगा सिद्धार्थ. 50 ओवर का फॉर्मेट खत्म ही हो जाएगा. I hope not, because 50 over format is a blend for. अब मैं कह सकता हूँ इसको कि it's a blend between Test cricket and T20 cricket. एक उसका perfect blend है. And I think अगर आपको एक अच्छा टेस्ट प्लेयर बनना है, तो अगर आप पहले एक अच्छा ODI प्लेयर बन जाओ, फिर टेस्ट प्लेयर बनो. इज इट T20 से आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते. नहीं, आई डिसएग्री. मेरे हिसाब से सिद्धार्थ, जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है वो सारे फॉर्मेट खेल सकता है. आपके सामने प्राइम एग्जांपल राहुल द्रविड़ है. प्राइम एग्जांपल राहुल. तब तो तुमने सही बोला. डिसएग्री, आई कंप्लीटली डिसएग्री विथ यू. इन दिस डे एंड एज, ऑस्ट्रेलिया में जाके एक चीज जो मैं अपनी इंडियन टीम की परफॉर्मेंस से मैंने ये देखा है कि यू कैन नॉट हैव ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स एनीमोर. वो ईरा अब खत्म हो गया है. बिकॉज एक तो बॉलिंग कंडीशंस होम साइड्स को इतने फेवर करते हैं. आप इंडिया में भी देख लो. इंडिया में हमने स्पिनिंग कंडीशंस बनाई थी. वो अलग बात है कि हम खुद ही स्पिन खेलना नहीं जाते थे. ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलिंग खेलना जानता था. उसने कितनी अच्छी तरह से खेल लिया. बट आप ये क्यों देख रहे हैं कि अभी हम जितने भी आईसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात करें, 2 बारी साउथ ऑस्ट्रेलिया ने जीता, 2 बारी इंडिया ने जीता, 1 बार शेड, उसके बाद 1 बार पाकिस्तान ने जीता, 1 बार आपका साउथ अफ्रीका ने जीता, 1 बार वेस्ट इंडीज ने जीता और न्यूजीलैंड ने जीता. आपको क्या लगता है 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में कौन आएगा सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में? आपकी टॉप टीम्स कौन सी हैं? या आप पहले दर्शकों को बताना चाहेंगे कौन कौन सी टीम्स है 2025 इस साल के चैंपियंस ट्रॉफी में? आई थिंक इस साल तो हमारे आई थिंक वही टॉप 8 टीम्स आए हैं जो आई थिंक जो लास्ट वर्ल्ड कप में फिनिश किया था. फर्स्ट टाइम इसमें एक बार और हुआ है सिद्धार्थ. गेस करिए, आप गेस कर सकते हैं ना? श्रीलंका हैज फेल्ड टू क्वालिफाइड. यस. आई थिंक श्रीलंका नहीं है इस पर, वेस्ट इंडीज भी नहीं है. वेस्ट इंडीज भी नहीं है. श्रीलंका. कैन यू इमेजिन, क्या जयसूर्या, राणा तुंगा डिसिल्वा कभी इमेजिन कर सकते थे कि उनका फ्यूचर क्रिकेट ये है? पर आपने एक चीज नोटिस किया कि जो आपने इस पॉडकास्ट के शुरू में बताया था कि पर्पस क्या था चैंपियंस ट्रॉफी का, गेम को प्रमोट करने के लिए एंड छोटी टीमों को मौका देने के लिए. बट अब जो फॉर्मेट है वो चैंपियंस ट्रॉफी का, इसमें कोई छोटी टीमों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं. सिद्धार्थ, यही होता है. आपको जहां पैसा दिखता है आप उसको कमर्शियलाइज. बिल्कुल, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2013 और 2017 के बाद खत्म करने की बात करते थे, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आपका स्टार्ट होने. बिल्कुल. बट 2013 का जो लोग
लोगों ने फाइनल देखा, फिर 2017 का जो फाइनल का रिस्पॉन्स था, आईसीसी को लगा भैया व्हाई एम आई किलिंग माय ओन कैश काउ, क्यों मार रहा हूं मैं ऐसे। बट द होल पर्पस था, यू नो, नोबल कॉज से शुरू हुआ था, अब वो एलिटिस्ट गेम बन गया, अगेन एलीट ऑफ एलीट के लिए अगेन सैल्यूट टू गाय जगमोहन डालमिया, व्हाट अ थॉट, जगमोहन डालमिया। पर आई थिंक ये आई वुड से जो ग्रीड जो एक बीसीसीआई लेके आया, क्यों लेके आया, सबको इन्फेक्ट कर चुका है बच्चे से। बट सिद्धार्थ तो ये तो, बट आप देखिए कि आप, हम अभी बात कर रहे हैं कि क्रिकेट एज अ स्पोर्ट ओलंपिक में भी जा रहा है, बट हमेशा जब भी आप एक नॉन क्रिकेट बंदे से या पर्सन से बात करते हैं, उसको पता ही नहीं होता। वो कहता है कि क्रिकेट कितने प्लेइंग नेशंस हैं, आप क्रिकेट को फुटबॉल से या क्रिकेट को टेनिस से कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो क्या ये आइडिया वापस आ सकता है क्या? आपको क्या लगता है, ये नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस को प्रमोट करना, यूएस जैसी कंट्रीज को प्रमोट करना, इनफैक्ट, या आपको लगता है कि आईसीसी ने लीग मैचेस भी अलग अलग कर दिए? मैं देखते रहता हूँ कि नाइजीरिया, अफ्रीका की कंट्रीज, जापान की कंट्रीज भी आजकल क्रिकेट खेल रही हैं। तो आपको क्या लगता है अभी ये नेक्स्ट फोकस, हाउ टू प्रमोट क्रिकेट इन नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस अभी भी? सी हाउ आई विल, जहाँ तक मेरा मानना है, द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट, मुझे थोड़ा सा ना नेशनल टीम्स की इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी, बिकॉज एक तो आपका इतना फ्रैंचाइज क्लब कल्चर चल रहा है फुटबॉल में, मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप चलो, मैं कोई भी सवाल पूछेगा कि व्हिच स्पोर्ट इज इंडिया गुड एट, सब सवाल देते हैं क्रिकेट, क्यों? ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ व्हिच स्पोर्ट इज यूएसए गुड एट यूएसए? क्योंकि यूएसए में टेनिस या रग्बी, एग्जैक्टली, नो डेफिनेटिव आंसर, बिकॉज वहां पे इतना बड़ा फ्रेंचाइज कल्चर उन्होंने शुरू कर दिया है। बेसबॉल, बास्केटबॉल, नेशनल हॉकी लीग, एनएफएल लीग, जो फ्रेंचाइज कल्चर, यूएसए एज ए टीम स्पोर्ट, द होल कंट्री, दे डोंट रैली बिहाइंड एनी टीम। बट सिद्धार्थ, ओलंपिक्स में तो हमेशा यूएस टॉप, हाँ, एज अ ओलंपिक थिंग, ओलंपिक टीम, यूएस ओलंपिक टीम, ऐसा क्या यार? वो तो उनका कल्चर है। आप उनके किसी भी हाई स्कूल, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वो हर स्पोर्ट खेल रहे होते हैं, कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है जो खेल नहीं रहे होते। अच्छा, कमिंग बैक टू चैंपियंस ट्रॉफी 2025, इंडिया के सारे मैचेस दुबई में। ये मैं समझता हूँ हमारे लिए एक एडवांटेज रहेगा। ये वही वाली बात होती है जो पिछले T20 वर्ल्ड कप में हमें पहले से मालूम था, हम अपना सेमीफाइनल गयाना में खेल रहे हैं, क्योंकि वो ऑडियंस के लिए उन्होंने इंडिया को पहले से बोल रखा था कि इंडिया अगर सेमीफाइनल पहुंचेगा तो वही खेलेगा। तो काफी डिसएडवांटेज हुआ था इसका बाकी सेमीफाइनलिस्ट में कि यार इंडिया को तो पहले ही मालूम है वो कहाँ खेलना है। एक तरह से फिर वही कर दिया आईसीसी ने कि भैया तुम सेमीफाइनल वही खेलोगे, फाइनल भी वही खेलोगे। वो तो हमारे गृह मंत्री का पुत्र है। नहीं, आप प्लीज बताइए व्यूअर्स। जय शाह, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जय शाह है। बीसीसीआई के कौन हो गए चीफ? पड़ोसी है हमारा, पड़ोसी। बट आपको क्या लगता है, पड़ोसी बाय द वे इज राहुल जेटली ना, रोहन जेटली। बट आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स इज क्रिकेट में थोड़ा पॉलिटिक्स का भी आ जाता है? पॉलिटिक्स मैं इसलिए कह रहा हूँ, नॉट कि हमारे जो हम लोगों ने जिनके नाम लिए वो हैं चीफ, बट अगर आप क्रिकेट टीम में भी देखिए सिद्धार्थ, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, अभी भी आप प्राइमरीली फोकस देखिए तो वेस्ट जोन, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बैंगलोर, चेन्नई, वो आपको और कोई प्लेयर दिखते ही नहीं है किसी और जोन से। नहीं, बट इन फेयरनेस आई थिंक अभी थोड़ा बहुत चलन होगा। एक टाइम में तो मैं जहां समझता हूँ बहुत होता था कि भैया अब मेरी इस जोन वाले बोलते थे अब हमारी बारी है 2 प्लेयर्स की। बट जहां तक पॉलिटिक्स का आपने बोला, आई थिंक बीसीसीआई एंड पॉलिटिक्स गो अ लॉन्ग वे बैक। माधवराव सिंधिया, शरद पवार, दे वर ऑल चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई। अच्छा, 2025 आपके टॉप 11 इंडिया। टॉप 11, ओके, वी फर्स्ट गो विद, मैंने लिख के रखा था काफी केयरफुल डिलिब्रेशन। अच्छा, जस्ट टू टेल यू ऑल द व्यूअर्स कि अभी तक सिद्धार्थ चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है, एंड आई थिंक एक डेडलाइन भी थी जो आई थिंक निकल भी गई है। 16 निकल भी, पर ठीक है, आईसीसी चेयरमैन अपना भाई है, क्या दिक्कत है? बट आपको क्यों लगता है, क्या ये विजय हजारे टूर्नामेंट का खत्म होने का वेट कर रहे हैं? नहीं, देखो, ये तो मैं अभी भी सीधा बोलता हूँ, ये तो बीसीसीआई का जो इन्फ्लुएंस है, आपका चाहे जो भी टूर्नामेंट फिनिश हो, एक डेडलाइन इज अ डेडलाइन, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए सीधा उसको। और एक बात बताइए, विजय हजारे का बस अब फाइनल बाकी है जहां तक मैं जानता हूँ। अभी कल ही सेमीफाइनल हुआ था, जो अगेन वन ऑफ माय पिक्स डिड
अमेजिंगली वेल। मैं असीम को पिछले कई दिनों से मैं ये बात बोल रहा था, बट वो मेरी टीम में अभी भी नहीं है सिद्धार्थ, हाँ, सॉरी टू से। वो ठीक है, बट जहां तक मैं मानता हूं कि अगर ऐसी परफॉर्मेंस को इग्नोर कर दिया तब तो ये वही बात हो गई कि इनविंसिबल की स्क्वाड 1920s में बनी थी और ब्रैडमैन को ड्रॉप कर रहे थे। वही वाली ओके, बात। टॉप 11 ऑब्वियसली यंग आपके गन openers? यशस्वी जायसवाल, ओके, उसके साथ as you say vada pav. Rohit, he calls you vada pav by any chance if you're seeing this, huh? Remember this. And वो fitness में कुछ कर ही नहीं रहा है। I always vouch for you. You're my captain. फिटनेस में गुरु वो कुछ कर ही नहीं रहा है। आप एक सुन लो। तरफ यशस्वी जायसवाल को देख रहे हैं जिसकी कट्स दिख रहे हैं आपको बॉडी में। अरे तो- He's looking like a WWE wrestler। और आपको दूसरी रोहित तरफ के ना आपको बड़ा- पुराने मैचेस देख लेने चाहिए, उसके भी अच्छे खासे कट्स और लीन फिगर। अब नया का दौर। अरे भैया उम्र हो गई बच्चे की, ये देखो उम्र में ये देखो ये हाल होता है यहाँ पे, क्या बात कर रहे हो यार। अच्छा, तो यशस्वी Rohit, combination of youth and experience again. and then But now- my all-time white ball king Kohli. King Kohli. No better player who has ever played the white ball cricket without a shadow of a doubt. I disagree. Sachin has always been the best. Sachin unfortunately was not allowed to play T20. He averages more than Sachin in ODIs and T20 में तो भूल ही जाओ। Sachin World Cup final. No, Siddharth, sorry to say. Okay, let's see. Topic for another day. Virat Yeah. or Sachin. Virat Topic or for Sachin. another day. Okay. आपका फिर 2 down. Then Shreyas. Shreyas Iyer. Shreyas I also Iyer. agree. And then my man of the moment comes in, Karun Karun Nair. Yeah, I gave him a chance. क्या सिद्धार्थ, जस्ट आप देखिए क्रिकेट में हम लोग एज अ फैन बहुत इमोशन हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं और हर डिसीजन हम लोग एज एन इमोशन करके नहीं ले सकते। सिर्फ एक टूर्नामेंट में रन मारने के बेसिस पे उसको क्यों इंडिया टीम में लिया जाए? Why? but तो ये- ऐसे तो सरफराज खान को क्यों नहीं खिलाया बीजेपी? नहीं, वो आपकी बात में बिल्कुल सही है, वो बहुत नाइंसाफी हुई थी सरफराज के साथ। ही शुड हैव बीन प्लेड एटलीस्ट, जो होम सीरीज होती थी वो उसको बहुत पहले खिलाना चाहिए था। बट एनीवेज, गोइंग बैक टू करुण नायर, why I say this is because obviously ongoing Vijay Hazare tournament, the conditions of Vijay Hazare Right. and Dubai will be very similar. And here you have a आप कह रहे हैं batsman. कि दुबई में स्लो विकेट है, It is a slow करुण wicket. नायर प्लेज स्पिनर्स वेरी वेल। स्लो विकेट, क्लाइमेटिक कंडीशंस, थोड़ा ह्यूमिड रहेगा बट वहां क्या आपको पे। लगता है कि हमारे कोच जो है, जो आजकल हमारा माहौल बहुत गंभीर चल रहा है टीम में, तो आपको क्या लगता है कि गंभीर माहौल में करुण नायर को प्लेस मिलेगी? मुझे लगता है इस गंभीर माहौल में गंभीर जी ही करुण नायर को बहुत ही गंभीरता के बाद सोचने के बाद वो जरूर चांस देंगे। बिकॉज जैसे तुमने बोला कि सरफराज का भी फॉर्म अच्छा रहा था, बट ओडीआई क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट में 750 रन बना के नॉट डिसमिस्ड होना दुनिया में कहीं किसी ने नहीं। चलिए, लेट्स होप ही वाज द ओनली ट्रिपल Yes, सेंचुरियन। and he is my phoenix. It उसका टाइम है, मार के वो टीम से बाहर निकल गया था। time to rise from the ashes for Karun Nair. करुण नायर के बाद करुण नायर के बाद obviously ऋषभ पंत. I go to ऋषभ नो पंत. संजू सैमसन इन योर साइड? यार I'll probably keep him as my reserve keeper because पंत का actually चैंपियंस ट्रॉफी में मैचेस भी ज्यादा है नहीं, तो I think पंत लास्ट कर जाएगा एंड रिजर्व कीपर I'll keep him. नहीं, जैसे नहीं, T20 वर्ल्ड कप में था संजू सैमसन आई रिजर्व. थिंक ऋषभ पंत क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से वो एग्रेशन, वो कॉन्फिडेंस, Yes. आपने देखा होगा 2020 वर्ल्ड कप जो यूएस में भी हुआ था, हर मैच में क्या कॉन्फिडेंस था। इवन ऑस्ट्रेलिया में मैं बोलूंगा उसका कॉन्फिडेंस था कि फालतू शॉट मारने निकल गया, कि फालतू भले ही हो गया एंड में आउट हुआ, बट ही हैड द कॉन्फिडेंस टू गो प्ले वो खेल दैट. सके। चलिए, तो आप कह रहे हैं अगेन स्टूपिड नहीं था वो? नो आई थिंक उस समय लगा बिकॉज ऑनेस्टली वो जो सेशन पलट गया हमारा मेलबर्न में, अगर वो मैच ड्रॉ कर देते तो क्या पता सीरीज का ही रुख बदल सकते थे. बट एनीवेज, यू नो, एज सिद्धू पाजी कहते थे, इफ इन रैंस एंड पॉट्स एंड पैन देयर वुड बी नो टिंकर्स, व्हाटएवर दैट मैन. देखिए सिद्धू जी जो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो चलिए आगे। तभी हम भी बोल देते हैं, आपको समझ में ना आए क्या फर्क पड़ता है. फिर ऋषभ पंत के बाद? ऋषभ पंत के बाद आई स्टार्ट गोइंग टू माई बॉलर्स. यस, आई एम अज्यूमिंग बुमराह इज आउट. पहले मैं बता दूं, मैंने ये टीम अज्यूम किया आपने है. ले लिए। बुमराह इज आउट. मेरा अलग व्यू है, मुझे लगता है कि जो प्रीलिमिनरी गेम्स होंगे सिद्धार्थ, उसमें बुमराह नहीं खेलेगा, एंड इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर अ सेमीफाइनल देन ही विल बी बैक फॉर So maybe he might be part of the 14, हाँ. but not Okay. not my 11. तो Okay. assuming बुमराह नहीं है तो Obviously मोहम्मद शमी. Yeah. बहुत रेस्ट कर लिया उन्होंने 1 साल. मोदी जी का फेवरेट शामी. तो मोदी जी ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था सिद्धार्थ, वो पिक्चर अभी
तक मेरे को याद आती है. ओके, मोहम्मद शामी देन. उसके बाद I want to bring in a left arm bowler, fast bowler, Arshdeep. Get him in. Swinging. Get him in. Swinging or not swinging, at least change of angles for the batsman. You उसने know, ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करा था. बहुत अच्छा. T20 World Cup, he did really well. Really well. So I think Arshdeep Okay. deserves a chance Okay. for sheer hard work. Okay, before that, my all-rounder, Akshar Patel. He is my all-rounder for the. बट आप अगेन बैटिंग ऑलराउंडर ले रहे हैं. आपको बॉलिंग ऑलराउंडर. हाँ, तो ये I would say he's as good as a bowler also. नहीं. He comes with the height. सिद्धार्थ, आपको हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है उससे रन मारने की. बॉलिंग ऑलराउंडर से हमेशा एक्सपेक्टेशन होगी विकेट लेने से. But I would still go because मैं दुबई में 2 स्लो बॉलर्स खिलाऊंगा जरूर. ठीक है, I will not play a fast bowling all rounder in Dubai. I need 2 स्लो बॉलर्स because एक तो प्रॉब्लम क्या है कि मेरे टॉप ऑर्डर बैट्समैन कोई बॉलिंग नहीं करता है. ओके, I don't have a Travis Head, unfortunately. चलिए ठीक है फिर. So Akshar Patel, then I go with Kuldeep, my main spinner. My main spinner. 2002. But is he fit enough to? Yes, he just started playing. I think we just saw the headlines yesterday that he's announced his return. He I think started playing. so. He is gearing up. I think he's playing Vijay Hazare or Ranji or whatever. He's gearing up for that. And the last player? Last player again, I will go with. I think बंदे में जिगर बहुत है, मोहम्मद सिराज. मिया. बहुत जिगर डीएसपी है. सिराज. कोशिश करता है. डीएसपी को क्यों लोग डीएसपी से क्यों प्यार करते हैं? यार वो कोशिश करता है. कभी कभार उसकी तो कितने उसकी लड़के करते हैं परफॉर्मेंस हमारे. लिमिटेड. पर ठीक है, देखो आप ज्यादा बोल्ड डिसीजन ले लेते हो. बट सिद्धार्थ, उस लेवल पे आके आपको नहीं लगता कि विकेट्स अल्टीमेटली बॉलर को विकेट्स? पर एक बात बताओ, या आप कह रहे हैं कि मेरे को he can be a very good एक मैंने देखा है हमेशा से, जैसे वेंकटेश प्रसाद श्रीनाथ को करता था, यूनिस अकरम को करता था, वॉल्श एम्ब्रोस को करता था. तो एक बॉलर होता है विकेट लेने वाला, एक बॉलर होता है इकोनॉमिकल, जिससे कि दूसरी कोर से वो प्रेशर बनाए. इसलिए ले रहे हैं आप? मैं इसलिए भी ले रहा हूँ. और देखो शमी का क्या है, शमी इज कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. Okay. ठीक है, समझ लो एक तरह से फ्रेशर ही होके आ रहा है. अर्शदीप 50 ओवर में मेरे लिए नया रहेगा. हाँ. तो इनफैक्ट मेरा ये फास्ट बॉलिंग अटैक का लीडर रहेगा मेरे लिए, मोहम्मद सिराज. ठीक है, तो ये आपके टॉप 11 हो गए. ये मेरे टॉप 11. अच्छा, अब मेरे आप 11 और आपके 11 में सिर्फ 2-3 फर्क है. ओके. मेरा एक फर्क ये है कि मैं अपनी टीम में द ग्रेट हार्दिक पांड्या को लेता हूँ. अरे वो 4 ओवर से ज्यादा टिक जाए तो नहीं, बहुत है ना. नहीं. वो भी क्यों? तुम उस हार्दिक पांड्या को लो, स्टार लगा दो उसके ऊपर पहले तुम. हार्दिक पांड्या, प्रोवाइडेड ही कैन नॉट गेट इंजर्ड. मुझे आपको एक ऑलराउंडर चाहिए. अरे हमने अभी डिस्कस करा है सिद्धार्थ, चैंपियंस ट्रॉफी. आपको एक ऑलराउंडर अरे भैया, ऑलराउंडर चाहिए. कौन है आपकी टीम में? कौन है ऑलराउंडर? कपिल देव को डीएच करा के टीम में वापस ले आओ. आपकी टीम में कौन ऑलराउंडर है जो मैच जिताएगा? आप बताइए. भैया अक्षर पटेल की फील्डिंग, बॉलिंग, आप अक्सर पटेल को देखते हैं उस लेवल का? युवराज सिंह, आप उसको शेन चांस वॉटसन, दो. आप जयसूर्या. आप उसको चांस दो. आप एक बार बताओ, स्टीवन स्मिथ क्या था पहले? लेग स्पिनर. एग्जैक्टली. जयसूर्या क्या था? ऑफ स्पिनर. एग्जैक्टली. चांस दो. अच्छा ठीक है, ओके. अरे दिनेश कार्तिक भी तो कीपर ही था, बैट्समैन की तरह. ही प्लेड एज अ बैट्समैन फॉर इंडिया. मैं लेता हूँ, जितना मैंने देखा है और मेरा एनालिसिस कहता है, हार्दिक पांड्या इन माय टीम, क्योंकि हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर में लेता हूँ. और एक दूसरा ऑलराउंडर में ले रहा हूँ, वो है नीतीश कुमार रेड्डी. नीतीश कुमार रेड्डी क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जिस हिसाब से मैंने देखा, उसने हमेशा एटीट्यूड है, कॉन्फिडेंस है. कोई भी बॉलर हो, रन मार, ऐसा नहीं कि वो आराम से खेल रहा है, कोहली या रोहित शर्मा जैसे जिनसे बॉल ही नहीं छुई जा रही, आके वो दिखा रहा है कि बॉस मुझे खेलना है. नीतीश कुमार रेड्डी. और बाकी बॉलर्स में आई थिंक मैं ले रहा हूँ 2 स्पिनर, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल. आई थिंक आपने भी यही लिया है. तो सिर्फ और शामी और सिराज. आपके बैट्समैन क्या थे दोबारा? मेरी टीम में अर्शदीप नहीं है. नहीं, तो आपने करुण नायर की जगह किसको दिया? यशस्वी, रोहित शर्मा ओपनिंग, हाँ. विराट कोहली 1 डाउन, 2 डाउन श्रेयस अय्यर, फिर हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, ओके, नीतीश कुमार रेड्डी, टू मेनी ऑलराउंडर्स, कुलदीप टू यादव, मेनी ऑलराउंडर्स, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वन अनस्टेबल, शामी, वन अनटेस्टेड. ऑलराउंडर्स ही मैच जिताते सिद्धार्थ. हमारी एनालिसिस में यही कहती है. बहुत क्वेश्चन मार्क है. एक अनटेस्टेड है और एक अनस्टेबल है. कौन अनस्टेबल है? अनटेस्टेड है आपका रेड्डी. 50 ओवर नहीं खेला उसने इंडिया के लिए अभी तक. T20 भी नहीं खेला है. जैसे आप करुण नायर को फॉर्म पे ले रहे हैं इसलिए करुण नायर ने 50 ओवर की फॉर्मेट खेला है. पर एनीवे ठीक है, वी जस्ट होप कि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीते.
सिद्धार्थ अगर 2025 मैच जीतेंगे पार्टी मेरी तरफ से, अरे वाह, जहां आप बोले। Honestly, I don't have much hope with the Champions Trophy. मुझे क्यों? लगता है कि क्यों? हमें एक रीबिल्डिंग फेज में जाना चाहिए। देखो, ये आप गंभीर माहौल की वजह से बोल रहे हैं? गंभीर माहौल नहीं, मैं ऑनेस्टली अगर मैं फ्यूचर के लिए सोचूं, जो मैंने और वसीम ने टीम बनाई है ना, बहुत कंजर्वेटिव टीम है। अगर फ्यूचर की तरफ देखना हो तो मैं तो रोहित शर्मा को भी टीम में ना लूं, बट मुझे लगता नहीं हम इतने बोल्ड डिसीजंस ले पाएंगे। देखिए अभी आई थिंक आपका भी बड़ा पाव चलेगा आगे आगे। मुझे बड़ा लगता है पाव से बहुत कि प्रेम है और आई थिंक बड़ा पाव में 2027 वर्ल्ड कप तक आप देखेंगे। चलिए सिद्धार्थ, हाउ वाज द सेशन, कैसा था एपिसोड? Excellent. It was nice to revisit back the Champions Trophy because this is one ICC tournament जिसको probably इतनी importance मिलती नहीं है, but some amazing finals have happened there. And what memories? 25 years, 30 years. Exactly, imagine. And let's hope the viewers also आपको भी चैंपियंस ट्रॉफी के फैक्ट्स के बारे में पता चला। Yes. आपको भी कोई टेक अवेज हुए हैं। एंड कीप वाचिंग अस। Please like, share, subscribe. Yes, and we'll keep coming back with something or the other. And all let us about know in cricket. the comments आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए, हम लोग उसको Exactly. जैसे हमने We would love to hear from you, and we will, curate our content. And because it gives us also fresh ideas, what you think, what you want. As हम दो fanatics हैं cricket के, there are millions more in the country, billions more rather. So keep वीडियो देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड क्रिक सफारी को सपोर्ट करिए। And अगली बार मिलते हैं क्रिक सफारी पे। Take care, brothers. See you. Bye-bye. Bye.